स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना। अब आई थिंक अल्ट्रा स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स टू से द स्ट्रक्चर विच इज द डीपेस्ट मोस्ट, द फाइनेस्ट मोस्ट. The finest most or the deepest most structure is being derived by studying it with the help of the electron microscope. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम स्टडी करते हैं तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि वेन एवर वी आर स्टडिंग फ्रॉम द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन फाइंड आउट द डीपेस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आल्सो, कि व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ ultra structure or electron microscopic study. So here we are discussing the structure of the bacterial cell. In the bacterial cell, basically two major components we can observe. The major components of the bacterial cell is the cell envelope and the protoplasm. Two major component of the bacterial cell is cell envelope and the protoplasm. The first component is the peripheral layer, which is protecting or guarding the bacterial cell from outer layer or outside, and inner one is including all the liquid material, all the materials required for the growth and sustainability of the bacteria, that is called as protoplasm. So we are going to take one by one. And remember, this question is very important. Many of the time in many of the competitive examinations, some points that I will highlight also whenever I am just going to discuss those points are being asked in the examination. So let's start with the first structure, that is called as envelope. My dear student, you knows very well envelope का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर की layer, the peripheral layer, external covering is called as envelope. So here also very simpler concept. The external covering is called as envelope. सो इन्वेलप में यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेसिकली द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और अगर कोई और एक्स्ट्रा लेयर होती है, इफ एनी एडिशनल लेयर अराउंड दैट, देन इट इज कॉल्ड एज envelope. So basically the envelope is maintained by your envelope mean what cell envelope is defined as the cell wall and cell membrane including the outer membrane if it is present. अगर कोई तीसरी membrane है तो उसको भी यूज कर लिया जाएगा, otherwise only cell membrane and cell wall is present in case of envelope. So here in case of bacteria, the envelope is made of capsule or slime layer, the cell wall प्लस सेल मेम्ब्रेन. मतलब यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ में एक तीसरी लेयर भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर आर द कैप्सूल. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? इन्वेलप का सीधा मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड इफ एनी अदर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड एज इन्वेलप. And here in case of bacteria, cell wall is present, cell membrane is present, and around the cell wall one additional layer is present, that is called as capsule. So means we have to go with all three layers. तो सबसे पहले हम देखेंगे capsule, फिर देखेंगे cell wall, and finally we'll see the cell membrane. So just take a look on the capsule or the slime layer. So we are just going to start with the capsule or slime layer. Capsule or slime layer is the most outer layer or the outermost layer present around the cell wall. So cell wall of some of the bacteria is covered externally by a diffused and the loose covering, that is called as slime layer. Are you getting my point? This is outermost, the peripheral most layer. The cell wall is externally covered with some of the loose covering, some of the loose sheath, loose protective sheath around them, that is called as स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर का मतलब क्या हो गया? सेल वॉल के बाहर की तरफ मिलने वाली एक लूज पैकिंग है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. ध्यान रखना है कि द स्लाइम लेयर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड समटाइम इट मे बी कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स आल्सो. अमीनो एसिड मीन्स व्हेन अमीनो एसिड्स आर देयर, सो दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन्स in form of the protein chains. So it is composed of polysaccharides. So which kind of polysaccharide? Like the dextrans, levans are the polysaccharide by which it is being formed, and some of the amino acids are present. We'll see what are the amino acids, what are the polysaccharides present on here. एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, ध्यान रखना है, हमने दो वर्ड यूज किया है, आइदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर. तो नॉर्मली क्या होता है कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर बोल दिया जाता है, बट देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द स्लाइम लेयर एंड द कैप्सूल. तो डिफरेंस क्या है स्लाइम लेयर और कैप्सूल में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखें कि इफ the slime layer, or if the outermost layer is made of some of the nitrogenous material, then it is called as capsule. If the external most layer is made of the nitrogenous material, means if it is proteinaceous in nature, if it is made of amino acid, if it is made of polypeptide chain, then it is called as capsule.
and vice versa to this. If it is made of polysaccharide only like dextran 11, then it is called as slime layer. तो ये clear हो गया. Normally what happens कि we are using the slime layer and capsule as a synonym, but it has a quite difference. If it is made of polysaccharide material, then it is called as the slime layer. When it is made of the nitrogenous material, then it is called as capsule. तो ध्यान रखना है, कैप्सूल कब बोलेंगे, जब ये नाइट्रोजनस मटेरियल से बना होगा, और जब पॉलीसेकेराइड मटेरियल से बना होगा तो उस समय इसको बोला जाएगा स्लाइम लेयर. आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में. The thickness may be thickness of the capsule may vary. Sometime it may be thicker than 0.2 micron. So जब ये 0.2 micron से ज़्यादा मोटी होगी, on that situation that will be considered as macro capsule. Are you getting my point? Thickness of the capsule is also differs in different type of the bacteria. So somewhere it is thicker than the 0.2 microns. On such situation that is called as macro capsule. And if it is less thicker than the 0.2 माइक्रॉन, यदि इसकी थिकनेस 0.2 माइक्रॉन से कम है तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कैप्सूल. तो अभी तक का कैप्सूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल. लूज पैकिंग इज देयर. किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड और नाइट्रोजनस मटेरियल से. यदि पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, एंड इफ इट इज मेड फ्रॉम द nitrogenous material then it is called as capsule. Okay, माइक्रो कैप्सूल, मैक्रो कैप्सूल क्लियर है. यदि थिकनेस 0.2 माइक्रॉन से ज़्यादा है तो मैक्रो कैप्सूल. इफ इट इज thicker less than 0.2 micron then this is called as micro capsule. Moving on to some more point of the capsule, the slime layer. What is the importance of capsule? कैप्सूल के मिलने का फ़ायदा क्या होता है, स्लाइम लेयर के मिलने का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली स्लाइम लेयर इज नॉट मच मोर important for the bacteria, but capsule is very much important. The capsule is going to provide the protection for the bacteria from the dehydration, loss of the water from the body, from desiccation, phagocytosis. कुल मिला के बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है from the death. So the bacteria, those who are having capsule, they are well protected against any kind of the environment, from desiccation, from dehydration, from the phagocytic action of the host cell. So bacteria is well protected by the presence of capsule. तो बहुत important point है, ध्यान रखना. Capsule is going to provide a particular type of protection in the host environment. तो जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा, those bacteria are having the virulence in their behavior. Virulence का मतलब, my dear student, virulence means what? Virulence is an event that is associated with causing the disease, because ये बैक्टीरिया normally खत्म नहीं होते in the host body, तो they can cause any kind of the डिजीजेज इन द होस्ट सेल. तो इनको अपन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं. तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा दे आर वायरुलेंट बैक्टीरिया. वायरुलेंट मतलब दैट कैन कॉज द डिजीज. जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको अपन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं. सो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज गोइंग टू प्रोवाइड द वायरुलेंस टू द बैक्टीरिया, and those who are non-capsulated, they are non-virulent, they cannot cause disease to the host cell, they are safe. So harmful bacteria are capsulated because capsule is going to protect them from the harsh environment of the host cell, while harmless bacteria are non-capsulated. capsule उनमें नहीं मिलेगा. they will have either slime layer or the slime layer is also being absent thereon. तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को. कैप्सूल पहला लेयर था, सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड का बना होता है. अगर प्रोटीन का बना होगा तो कैप्सूल, अदरवाइज इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल एनवेलप, दैट इज सेल वॉल. बाहर, सबसे बाहर की तरफ आपका क्या था, the outermost layer is slime layer or the capsule. The next layer below the slime layer or capsule is the cell wall. The cell wall of bacteria is highly rigid structure because it is going to provide the shape to the bacteria. It protects the internal structure and provide a fixed shape to the bacteria. बहुत tough structure है, rigid structure है, which is going to provide a particular shape to the bacterial cell. एक fixed shape provide करता है bacterial cell को, और उसके अंदर मिलने वाली जितनी भी structures हैं उनको protection provide करेगा. बहुत ध्यान से सुनना है अगले कुछ points को. It is made of mucopeptide. Normally the cell wall in other plant is made of cellulose. So in bacteria the non-cellulosic cell wall is present. Remember, non-cellulosic cell wall is present. Are you getting my point? So this is non-cellulosic, मतलब किसी दूसरे टाइप के मटेरियल से बना होगा. So this is a kind of mucopeptide membrane.
म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड दैट इज नॉन सेलुलोजिक मटेरियल, पूरी तरीके से पॉलीसैकेराइड नहीं है। म्यूकस प्लस पेप्टाइड मतलब सैकेराइड प्लस प्रोटीन, स्टार्च और प्रोटीन दोनों को मिला के बनी हुई स्ट्रक्चर है। सो म्यूकोपेप्टाइड, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है लाइक पेप्टाइडोग्लाइकान, glycopeptide and murine. The mucopeptide is also known as with some other names like peptidoglycan, glycopeptide and the murine. तो is it clear? बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इंस्टेड ऑफ दैट इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. द म्यूकोपेप्टाइड इज आल्सो नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकान, ग्लाइकोपेप्टाइड और म्यूरिन. ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए. दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, रिमेंबर द पॉइंट. बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक एंड मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. और म्यूकोपेप्टाइड है क्या? म्यूकोपेप्टाइड इज एन हेट्रोपॉलीमर. हेट्रोपॉलीमर का मतलब ही होता है जहां पे दो अलग अलग तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं. म्यूकस प्लस पेप्टाइड, म्यूकस इज द पॉलीसैकेराइड एंड पेप्टाइड मींस प्रोटीन और स्टार्च दोनों मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस इज अ हेट्रोपॉलीमर. और म्यूकोपेप्टाइड का फॉर्मेशन तीन तरीके के एलिमेंट से होता है, तीन तरीके के कंपोनेंट से होता है. रटना पड़ेगा आपको. यू नीड टू गो फॉर द क्रैमिंग द कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन. Three type of components are present there in mucopeptide. First one is N-acetyl glucosamine. Second one N-acetyl muramic acid. Third one amino acids are there. First one, ये दोनों आपके क्या हो गए? Polysaccharides. So N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid and some of the amino acids are there, that peptide portion. So कुछ examples हैं, 4 से 5 amino acids यहाँ पे हो सकते हैं like alanine, D-glutamic acid, D-alanine, lysine. So many amino acids are there. So any 4 or 5 amino acids may present there on the mucopeptide region of the bacterial cell wall. तो ये क्लियर हुआ क्या? म्यूकोपेप्टाइड हेट्रोपॉलीमर है जो बना किससे होता है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से. प्रोटीन के फॉर्म में आपके एमिनो एसिड्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है. द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी डिफरेंस होता है. ये ऑब्जर्व किया गया थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी. द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल हैव मोर देन 80% ऑफ द म्यूकोपेप्टाइड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 80% से ज़्यादा म्यूकोपेप्टाइड होता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 80% से ज़्यादा म्यूकोपेप्टाइड होगा, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में केवल 3 से 12% म्यूकोपेप्टाइड हो सकता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल हैव मोर देन 80% ऑफ द म्यूकोपेप्टाइड इन देयर chemical composition, while in gram negative bacteria only 3 to 12% of the mucopeptide is present. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है. द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन्स अनदर मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज टिकोइक एसिड. In gram positive bacteria another material is present that is called as teichoic acid. The teichoic acid is very important component. It is known to bind up the magnesium ions with itself. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक और मटेरियल होगा दैट इज नोन एज टिकोइक एसिड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज गोइंग टू बाइंड अप द मैग्नीशियम आयंस विद इट एंड these magnesium ions are going to protect the bacteria from the heat shocks. थर्मल इंजरीज से बचाने का काम करते हैं, हीट शॉक से बचाने का काम करते हैं. दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ थर्मोस्टेबल बैक्टीरियाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड. तो ध्यान रखें, जिनमें भी थर्मल इंजरीज से बचने की कैपेसिटी है, दोज आर हीट स्टेबल बैक्टीरियाज, दे आर हैविंग टिकोइक एसिड इन देयर सेल वॉल. तो सेल वॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. रिजिड है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकान में क्या क्या होता है आपका? म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकान या ग्लाइकोपेप्टाइड या म्यूरिन होगा. हेट्रोपॉलीमर है, एमिनो एसिड प्लस एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. ये सारी चीज़ें हमने देख ली है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टिकोइक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव ओनली एंड ड्यू टू द टिकोइक एसिड द बैक्टीरिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ द हीट स्टेबल बैक्टीरिया. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ सेल एनवेलप इज सेल मेम्ब्रेन, द इनरमोस्ट लेयर that is living just below the cell wall. सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर की लेयर होती है सेल एनवेलप की और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है प्रोटोप्लाज्म के या साइटोप्लाज्म के. सो दिस इज जस्ट बिलो द सेल वॉल
दिस इज लिविंग एंड सेमी परमिएबल. लिविंग का मतलब लिविंग टिश्यूज से बनी होती है एंड दैट इज गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड मैनी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरिया इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली. सेमी परमिएबल नेचर की होती है. सेमी परमिएबल मीन्स टू से दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ बैरियर दैट इज सिलेक्टिव. Selective barrier, what kind of material has to be taken and what kind of the material has to be released outside, that has to be decided at the level of cell membrane. तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है. दिस इज केमिकली अ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. लाइपो प्लस प्रोटीन. लाइपो मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन. तो सेल मेम्ब्रेन इज अ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मीन्स व्हाट, द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सो इट हैज़ ऑल द एंजाइम्स. ध्यान रखना, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ. Cell membrane is the site of various activities, various life activities in case of bacteria. Since they are not having any other specialized structure in their body, so many of the functions are being completed at the level of cell membrane only. This is what we are saying the living structure it is. So it has all the enzymes for the synthesis of cell wall components. Are you getting my point? सबसे important function क्या हो गया इसका? It has all the enzymes related to the synthesis of cell wall component. और साथ में इसमें respiration से related बहुत सारे important enzyme भी पाए जाते हैं. Means what? This is responsible for respiration also. This is responsible for cell wall synthesis also. Cell wall synthesis से related enzyme भी यहीं पे हैं. Respiration से related enzyme भी यहीं पे हैं. My dear student, गुरु ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मीजोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. मीजोसोम्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस है. मीजोसोम्स, समटाइम्स व्हाट हैपन, द cell membrane are going to invaginate inside, they are going to infold themselves. cell membrane invaginate होके infold होके कुछ inward projections का formation करती है. those inward projections are called as mesosomes. Are you getting my point? Infolding of the cell membrane forms some inward projections. those projections are called as mesosomes. बहुत important question है ये. मीजोसोम्स कैसे बनते हैं? सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है. दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स एंड दीज मीजोसोम्स आर सीम्स टू बी आर क्लेम्ड टू बी द होमोलॉगस टू द यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया. इनको माना जाता है कि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर हैं. एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट इज द respiratory structure. The final process of respiration in the eukaryotic cell took place in the mitochondria only. और हमने देखा है कि the prokaryotic cell does not have any particular type of cell organelles, so they are suffering from regulation of the mechanism. So here the respiration is being taking place inside that mesosome. This is believed, even though many of the scientists, many of the researchers does not believe such kind of the function, but this is very much cleared now with many of the researchers. This is revealed that the mesosomes are the site of respiration because this is an storehouse of respiratory enzyme. Infolding of cell membrane is called as mesosome. That mesosomes are eukaryotic mitochondria. They are similar to the eukaryotic mitochondria. They are the site of respiration in the prokaryotic cell or in the bacteria, as they are the storehouse of all the respiratory enzymes and also helpful in the formation of cell wall. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल को बनाने वाले मैक्सिमम एंजाइम मिलते हैं. so those enzymes are also being provided by the mesosomes only, and this is also helpful in releasing out of the materials from the cell, that is called as excretion of the cell. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए. मेन फंक्शन मीजोसोम का अगर पूछा जाएगा तो दैट इज respiration. This is homologous to the eukaryotic mitochondria. So this is all about the cell membrane. Moving on to the cytoplasm, the next structure inside the cell envelope, that is cytoplasm or protoplasm. All the living component are present here inside. So cytoplasm में देखते हैं अपन. This is a liquid present in between the cell membrane and nucleoid. अभी nucleoid कई बार आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से अपन डिटेल में समझेंगे. हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, एट दैट टाइम ओनली वी हैव गॉन थ्रू विद द न्यूक्लियाइड. तो ये तो क्लियर है आप लोगों को कि लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियाइड एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. अपन न्यूक्लियाइड को और आगे समझेंगे. So cytoplasm is a complex mixture of the carbohydrate, lipids, proteins, vitamins, salt, minerals, whatever is there present inside the cell is present inside the cytoplasm only. That is what it is, a kind of complex mixture.
it has glycogen, it has volatilin granules, the storage granules are there. No cell organelles are present. This is important point. No cell organelles are present as it is the prokaryotic cell. Only which cell organelle is present? We have already seen that ribosome. And which type of ribosome is present? 70S ribosome. And 70S ribosome is going to make a group on the RNA, and that ribosomal group on RNA is called as polysome or polyribosome. So individually ribosome नहीं मिलता. Instead of that, this is going to form a group of ribosome that is called as polyribosome. So ये clear हो गया. Liquid present in between the nucleide and cell membrane is called as cytoplasm. Complex mixture है, सभी कुछ इसी में मिल रहा है. इसमें volatilin granule होगा, fat होगा, and the storage granule, the glycogen is there. No cell organelles, only ribosome in form of polyribosome. Moving on to the next point of the cell structure. Next one, nucleoid. Nucleoid is the genetic material of the bacterial cell or the prokaryotic cell. हमने देखा था कि nucleoid is a genetic material which is present in a diffused form in cytoplasm, because the nucleus in case of prokaryotic cell or the bacterial cell does not have a definite boundary, that is called as nuclear membrane. So due to the absence of nuclear membrane, all the genetic material that is DNA is present in cytoplasm only, and that cytoplasm, the DNA in cytoplasm only is called as nucleoid or genophore. Okay, so nucleoid and genophore means what? The DNA of the prokaryotic cell, DNA of the bacterial cell. So this is a small circular DNA. DNA हमने सारी properties पहले देख रखी हैं. The DNA of the bacteria, DNA of the prokaryotic cell is double stranded but without the histone protein. It is present in the cytoplasm. Moving on to the next, that is plasmid. Very important question for NET. Get ready for a question from this portion for your final examination as well as there in the NET examination. Bacterial cells में this has been observed कि some other genetic material or some extra genetic material is being also present other than the nucleoid. Nucleoid is the major genetic material which is taking part in the information exchange, replication, everything, but some of the other or extra genetic material is also being reported in the prokaryotic cell or in the bacterial cell. So that extra circular DNA other than the nucleoid is called as plasmid. बहुत important role है इसका. The small circular DNA other than the nucleoid is called as plasmid. Plasmid का मतलब समझ में आया? Plasmid is a kind of extra DNA that is circular, present other than the nucleoid. This is not taking part in the genetic transmission. Are you getting my point? ये मेजर नहीं है, उसके साथ में एक्स्ट्रा है, दैट इज ऑफ नॉन यूज फॉर द बैक्टीरियल सेल. लेकिन इसका सेल बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. दिस वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय द लेडरबर्ग इन 1952. द प्लाज्मिड वॉज फर्स्ट टाइम स्टडीड और रिपोर्टेड बाय द लेडरबर्ग इन 1952. द प्लाज्मिड्स आर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियाइड. जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, दे आर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियाइड. दे आर नॉट हैविंग एनी एसोसिएशन विद द न्यूक्लियाइड. रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, लेकिन रेप्लिकेशन होगा और न्यूक्लियाइड से फ्री रेप्लिकेशन होगा. न्यूक्लियाइड विल रेप्लिकेट एंड दे विल रेप्लिकेट देमसेल्स. दोनों का रेप्लिकेशन एक दूसरे से फ्री होगा. एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देयर, दे कैन ट्रांसफर इजीली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. प्लाज्मिड को आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जा सकता है. एंड ड्यू टू द पावर ऑफ देयर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, दे आर द बेस्ट टूल प्रूव्ड देयर इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जब जेनेटिक मटेरियल को शिफ्ट किया जाता है इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दैट टाइम दीज प्लाज्मिड्स आर वेरी मच यूजफुल. दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स. नाउअडेज द प्लाज्मिड्स आर वेरी मच कॉमन इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर शिफ्टिंग ऑफ द host, shifting of the alien DNA material to the host cell for the purpose of molecular biology or recombinant DNA technology. We'll discuss it later on. कुछ और ऐसे situations बनती हैं जहाँ पे प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड के साथ में एसोसिएट हो जाता है. नॉर्मली दिस इज फ्री फ्रॉम द nucleide, but in some of the cases plasmid is found to be associated with the nucleide. On such situation, this is called as episome. When plasmid join to the main chromosome, that means nucleide, then this is called as episomes. Epi, upper somes, body. So when plasmid join to the main chromosome, then it is called as episome. अब प्लाज्मिड को और थोड़ा सा डिटेल करते हैं. प्लाज्मिड तीन तरीके के रिपोर्ट किए गए हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एफ फैक्टर और सेक्स फैक्टर, और एफ मीन्स फर्टिलिटी फैक्टर. सेक्स फैक्टर, एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर. एफ फैक्टर का मतलब होता है these are the factors, these are the plasmid which are responsible for transferring the genetic material from one cell to another cell.
ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है. सो दैट टाइम वन बैक्टीरियल सेल में शिफ्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल टू द another bacterial cell. That is what the genetic recombination, genetic transduction process that we'll understand there in the genetics. So ये फैक्टर वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? दिस इज हेल्पफुल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, हेल्पफुल इन द ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये फैक्टर मिलता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता. तो जिनमें ये फैक्टर मिलेगा दोज आर कॉल्ड एज एफ पॉजिटिव स्ट्रेन, and those who are not having this factor they are called as F negative strain. F positive strain bacteria मतलब the bacteria which is having F factor present there, and those who are not having F factor in them they are called as F negative strain. F negative. तो F पॉजिटिव स्ट्रेन में फर्टिलिटी फैक्टर मिलेगा, तो दैट इज वाई दे आर एबल टू ट्रांसफर इट टू द स्ट्रेन वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट. मतलब F पॉजिटिव स्ट्रेन इज एबल टू ट्रांसफर द फर्टिलिटी फैक्टर टू द F निगेटिव स्ट्रेन. तो इसीलिए F पॉजिटिव स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? डोनर. और F निगेटिव स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? रिसिपिएंट. तो ये क्लियर हो गया. फर्टिलिटी फैक्टर मीन्स व्हाट? द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. अब जिन बैक्टीरिया में रहेगा उसको F पॉजिटिव स्ट्रेन और जिसमें नहीं रहेगा उसको F निगेटिव स्ट्रेन कहेंगे. सो द बैक्टीरिया विच इज हैविंग F पॉजिटिव विल ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द F निगेटिव. सो द F पॉजिटिव विल कंसिडर्ड एज द डोनर एंड F निगेटिव विल बी कंसिडर्ड एज द रेसिपिएंट. Okay, moving on to the next type of the plasmid that is called as R factor as the resistance factor. रेजिस्टेंस का मतलब द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर द सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द बैक्टीरिया बाय देयर इफेक्ट. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकते हैं, बैक्टीरिया के वायरुलेंस को कम करते हैं. तो सच बैक्टीरियाज आर हैविंग द आर फैक्टर्स. दीज आर फैक्टर्स कंटेनिंग बैक्टीरियाज आर वेल प्रोटेक्टेड, वेल रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के अगेंस्ट वेल रेजिस्टेंट होते हैं और एंटीबॉडीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. एंटीबायोटिक से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. तो दीज बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक. जहाँ पे ये मिलेगा तो दीज बैक्टीरियाज आर कंसिडर्ड एज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस एंड दे आर वायरुलेंट बैक्टीरिया. ओके, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज कॉल फैक्टर. कॉल फैक्टर इज हेल्प इन द कॉलिसिन फॉर्मेशन. कॉलिसिन इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर केमिकल that is helpful in the property that is helpful in bacteria to generate the antibiotics. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं those are used in the formation of antibiotics. उनके लिए यूज़ किया जाता है ये. So F factor, R factor, resistant factor, Cole factor help in colicin formation which is found in the bacteria which helpful in the antibiotic formation or which are having the capacity to produce antibiotics. Moving on to the next. अब बैक्टीरियल सेल को एक डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं. तो हियर द 3 लेयर्ड कंडीशन इज देयर. लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3. तो आउटर वन इज स्लाइम लेयर और कैप्सूल लेयर. द मिडिल वन इज सेल वॉल. द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये 3 लेयर आपने देखा हुआ है. तो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द कैप्सूल और स्लाइम लेयर, द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन. 3 लेयर. द इनर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल एंड द स्लाइम लेयर आर द कैप्सूल लेयर. दूसरा हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मीजोसोम्स. द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूसली और इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म द मीजोसोम. सो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म द मीजोसोम्स हियर. सो मीजोसोम्स के बारे में आपने देखा था कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच आर होमोलॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड परफॉर्म द रेस्पिरेटरी फंक्शन हियर. तो ये हो गया मीजोसोम्स. यहीं पे हमने देखा था बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे यू आर एबल टू ऑब्जर्व दीज एंजाइम्स. दीज आर द कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. यू कैन ऑब्जर्व वेरी वेल मीजोसोम्स. मीजोसोम्स के पास में रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. द फ्लैजिला इज देयर. along with that innermost structure is called as cytoplasm. उसमें लिपिड ग्रैन्यूल होगा, वॉलिटिन ग्रैन्यूल होंगे. RNA is being found here. Glycogen is there. द न्यूक्लियाइड इज देयर. और न्यूक्लियाइड के साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा था प्लाज्मिड. सो दिस इज प्लाज्मिड. सो न्यूक्लियाइड द मेन जेनेटिक मटेरियल और मेन क्रोमोसोम और उसके साथ में स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. तो एक बार फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर रिपीट करूँ. 3 लेयर का सेल इन्वेलप होता है. सबसे बाहर कैप्सूल और स्लाइम लेयर, बीच में सेल वॉल. थर्ड वन इज द सेल मेम्ब्रेन. उसके अंदर पूरा सेल साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होता है और क्या बनाएगा आपका
मीजोसोम्स बनाएगा। सेल मेम्ब्रेन के पास में रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम होंगे, दोज एंजाइम्स आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। फ्लैजिला होगा, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, सो फ्लैजिला इज देयर विच इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट। लिपिड ग्रैन्यूल्स, वॉलिटिन ग्रैन्यूल्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। आरएनए है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे छूट गई थी, दैट इज राइबोसोम्स आर गोइंग टू फ्यूज ऑन आरएनए एंड फॉर्म अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ द राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम और polyribosome. So this is what the structure of a particular bacterial cell or typical bacterial cell. Okay, so is it clear to you all? I think now there is no problem to you, and if you are having any kind of problem, you just ask to me within a comment box. I will just let you know what is the solution of those problems. Okay, moving on to the next concept of the bacterial cell. Dear student, we are again and again just saying gram positive, gram negative, gram positive, gram negative. So here it is time to understand the gram negative and gram positive. Gram negative and gram positive bacteria means this is based on the staining property of the bacteria. Staining property का मतलब ये होता है the cells which are microscopic in nature, we are not able to observe them with our naked eyes. So to observe them with the naked with the help of microscope, we need to provide them specified color, and each and every cell has their specific properties to get the specific color. मतलब वो अगर आप उसको किसी दूसरे कलर से प्रोवाइड करेंगे, किसी दूसरे कलर से कलर करने की कोशिश करेंगे, तो दैट कैन नॉट बी कलर्ड आउट. सो स्टैनिंग का सिंपल मतलब होता है कलरिंग करना. किसी भी पर्टिकुलर टाइप की सेल को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट. दैट रिएजेंट इज कॉल्ड एज स्टेन, एंड द प्रोसेस ऑफ कलरिंग दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज स्टेनिंग. सो बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे होती है वो अपने को समझना है. So staining technique of bacteria was proposed by the Christian Graham in 1884. The staining technique for the bacteria was presented by the Christian Graham in 1884. इन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक बताई थी दैट कैन बी completed there in an ordinary lab. If a biology lab is there, so we can complete here. So what can be done for that? We need to prepare an smear of the bacteria on a glass slide. बैक्टीरिया का एक स्मीयर बनाते हैं ग्लास स्लाइड पे. दो स्लाइड लेते हैं. वन स्लाइड इज हॉरिजेंटल, अनदर स्लाइड इज गोइंग टू बी मेक ऑन अ प्लेस्ड ऑन अ 45 डिग्री एंगल. बैक्टीरिया को वहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हैं, ड्राई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्मीयर ऑफ द बैक्टीरिया. विल सो देयर इन द लेबोरेटरी व्हेन विल बी अवेलेबल देन फिजिकली इन द क्लासरूम्स. सो स्मीयर बनाएंगे. स्मीयर बनाने के बाद में दोज स्मीयर ऑफ द बैक्टीरियाज आर अलाउड टू स्टेन विद द ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज स्टेन्स आर बीइंग यूज्ड अप बाय और प्रिपेयर्ड बाय द क्रिश्चियन ग्राम. तो उन्हीं के नाम पे टेक्निक का नाम भी पड़ा हुआ है ग्राम स्टेनिंग. बैक्टीरिया को स्टेन करने की टेक्निक को अपन कहते हैं ग्राम स्टेनिंग. सो उनको स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन से. व्हाट इज ग्राम स्टेन? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन को मिला के ग्राम स्टेन का फॉर्मेशन किया जाता है. स्टेनिंग विद द क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैक्टीरियल स्मेयर बनाया ग्लास स्लाइड पे, उसके बाद में उसको स्टेन किया विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेन. व्हाट इज ग्राम स्टेन? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड द आयोडीन सॉल्यूशन. जैसे इसके साथ में स्टेन करते हैं, सो ऑल द स्मीयर ऑफ द बैक्टीरियाज आर गेटिंग कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ द पर्पल कलर या वायलेट कलर. पर्पल या वायलेट कलर में आ जाएंगे सारे के सारे बैक्टीरिया. जब सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर या वायलेट कलर में आ जाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद में आफ्टर कीपिंग देम फॉर द ड्राइंग, वी आर जस्ट गोइंग टू वॉश दोज स्टेन्ड स्लाइड विद द हेल्प ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले स्मीयर बनाया, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन किया, अलाउ इट टू ड्राई. आफ्टर ड्राइंग इट वी आर जस्ट गोइंग टू वॉश इट विद द हेल्प ऑफ 95% अल्कोहल. और 95% अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद में हमको दो सिचुएशंस मिल सकती हैं. Either some of the bacteria or some of the smears may retain their violet color even after washing with the 95% alcohol, and some of them will lose their violet color after washing with the alcohol. Some of the bacteria will retain their violet color after washing with the alcohol, and some of them will lose their color आफ्टर वॉशिंग विद द अल्कोहल. तो जो बैक्टीरिया उस कलर को रिटेन करते हैं, वायलेट कलर को मेंटेन करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड दोज हु
लॉस देयर कलर इज कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्लियर हो गया। क्रिश्चियन ग्राम ने टेक्निक दी थी, तो ग्राम स्टेनिंग कहते हैं इसको। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे दोज हु आर रिटेनिंग द वायलेट कलर द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, एंड दोज हु आर लूजिंग द स्टेन दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। ध्यान रखने की बात है, ऑल द बैसिलस आर ग्राम नेगेटिव, ऑल द कोकस आर ग्राम पॉजिटिव। तो ये क्लियर हुआ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वंस अगेन आई एम क्लियरिंग द टेक्निक। स्टेनिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कलर to the cell so that they can be easily observed under the microscope। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए टेक्निक किसने प्रोवाइड की थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। और जो स्टेन यूज किया जाता है, जो डाई यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन इज मेड ऑफ टू थिंग्स, क्रिस्टल वायलेट एंड द आयोडीन। जैसे अपन इसके साथ में स्टेन करते हैं बैक्टीरियल स्मीयर को, तो वायलेट कलर आएगा। उसके बाद 95% एल्कोहल में वॉश करेंगे। आफ्टर वॉशिंग इट, टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन में भी देयर, some bacteria may retain their violet color and some may lose the violet color. Those who retain the violet color, they are called as gram positive. Those who lose their color, they are called as gram negative. All the bacillus are gram negative and all the coccus are gram positive. So dear student, this is all about for today's lecture. We'll meet once again in the next lecture. Till the time, thank you for watching.